Beat January. Okay. Okay. So now the recording has started. Okay. So good evening, everyone, and a very warm welcome and congratulations for a successful Beat January against toxic pollutants. Now I'll start the Shanti part, start the program with Shanti part. We'll just be on mute and listen to the same. अपनी आंखें धीरे से क्लोज योर आइज जेंटली अपनी आंखें धीरे से बंद कर लें स्टे विद अस फॉर अ व्हाइल कुछ क्षण के लिए हमारे साथ बने रहें ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ओम शांति शांति शांतिः Okay. So thank you for your cooperation. Now I would like to welcome our speaker, Ms. Taru Singh, and I have written some introduction for her. So Ms. Taru Singh has a great vision of sustainable agriculture, chemical-free living, and providing waste to value solutions. With education in the related fields, that is MSc in Zoology and Diploma in Food Processing and Mushroom Cultivation, she has been successful in blending scientific expertise with practical innovations. Since 2018, she has been able to develop 29 eco-friendly bioenzyme products for sustainable agriculture, domestic use, and environment conservation. She is the founder and director of Peels Factory, which has been started in 2024 with a mission to commercialize bioenzyme-based solutions. In 2023, she started Farmers Producers Organization, that is Rajpura Sambhal Producer Company, empowering farmers through training in organic farming practices and technical support. She carries the responsibility towards policy advocacy and farmer empowerment in her role as Secretary Bioenzyme Entrepreneurs Academy and UP State President of Wiki Bioenzyme Council. With her journey from a homemaker to a change maker, she is committed to mentor aspiring environment enthusiasts, bioenzyme producers, contributing to a greener planet for the future generations. So we welcome Taru ma'am, and over to you, ma'am. Thank you, Parul. Thank you. So डिस्प्ले हो रही है मेरी स्लाइड्स हेलो Yes, ma'am. नमस्कार सभी को सो एम्पावरिंग एग्रीकल्चर विद बायोएंजाइम लेट्स स्टार्ट So empowering farmers through bioenzyme means restoring soil vitality, protecting the environment, and cultivating prosperity for a sustainable tomorrow. So this is the picture of APS Farm. APS Farm focuses on organic farming, multi-layer, vermicompost, and horticulture, provide training in organic farming and support women's group, recognized for innovations in sustainable agriculture, benefits over 5,000 farmers and employs 30 to 40 people annually. Peels Factory convert farm and kitchen waste into eco-friendly solution, develop bio, liquid fertilizer, pest control, and growth boosters, promote sustainable agriculture and environmental conservation. So this is the picture of APS Farm.
सो एपीएस फार्म टोटल लैंड 20 एकड़ है और जो मेन क्रॉप्स हैं वो शुगर केन, व्हीट, राइस, मस्टर्ड एंड मेंथॉल है। और 1 एकड़ का नींबू का बाग है और हम 12 एनिमल्स हैं हम लोग के पास। जो एनिमल फॉडर हम थाई सुपर नेपियर ग्रो करते हैं। वर्मी कंपोस्ट यूनिट है जिसमें 200 टन्स पर ईयर वर्मी कंपोस्ट बनता है। नेचुरल फर्टिलाइजर्स पे काम करते हैं, जीवामृत, ग्रोथ प्रमोटर्स एंड नेचुरल पेस्टिसाइड्स। और बायोजाइम यूनिट है जो 10,000 लीटर प्रोडक्शन कैपेसिटी की है। एंड वी विल वर्क ऑन सेल्फ सस्टेनेबल रेगुलर इनकम मॉडल, रेगुलर इनकम वीकली, मंथली एंड ईयरली। और होममेड फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं, पेस्टिसाइड्स बनाते हैं, टॉनिक्स बनाते हैं, मल्टी क्रॉपिंग और इंटरक्रॉपिंग पे वर्क करते हैं। और कॉम्बिनेशंस ऑफ वेजिटेबल्स, फ्लावर्स, पल्सेस, सीरियल्स और वेस्ट लैंड जो है हमारे उसको भी हम यूटिलाइज करते हैं एनिमल फॉडर उस पे ग्रो करके। और वैल्यू एडिशन पे भी वर्क करते हैं और रेजिड्यू मैनेजमेंट एंड वेस्ट मैनेजमेंट पे भी पील्स फैक्ट्री उस पे वर्क करता है। सो पील्स फैक्ट्री को 2021 में स्टैब्लिश किया गया था। जो भी हमारा फार्म वेस्ट निकलता है, लेमन्स, वेजिटेबल्स का और फ्लावर्स का, वो सब हम बाइंजाइम बनाने में यूज करते हैं। और हमने बना के उसको कंपोस्टिंग में यूज किया, सॉइल बूस्टर की तरह यूज किया और ग्रोथ प्रमोटर्स, फ्लोर क्लीनर की तरह यूज किया। हमारी पील्स फैक्ट्री ने 3 प्रोडक्ट्स निकाले हैं। सुपर हीरो फॉर एग्री प्रोडक्ट, प्राकृतिक क्लीनर मल्टी क्लीनर की तरह यूज होता है, और पशु कवच हम काउ शेड्स और टिक्स कंट्रोल के लिए यूज करते हैं। ये हमारे प्रोडक्ट्स हैं, वर्मी कंपोस्ट, बायोएंजाइम और ये वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स। ये पिक्चर्स हैं जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हमारे फार्म पे उन्होंने विजिट किया और एक्सप्लोर किया। हमने जो भी प्रोडक्ट्स हम बना रहे हैं हमने उसको डिस्प्ले किया और हमें काफी अप्रिशिएशन मिला उससे। ये कुछ आर्टिकल्स हैं जो हमारे न्यूज़पेपर्स में हमारे एपीएस फार्म्स के निकले थे। उन्होंने विजिट किया था गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने, और जो इंटरनेशनल ब्राजील से आए थे वो शुगर केन के ऊपर उन्होंने विजिट किया था, और ये हमारे आर्टिकल्स हैं। ये बायोएंजाइम के वेरिएंट्स हैं जो हमने अपने जो फार्म से निकला उससे बना के और काफी तरह के वेरिएंट्स बनाए हैं, जैसे एलोवेरा, रोज बायोएंजाइम, बनाना, राइस, और फ्लावर्स के भी हैं जैसे हिबिस्कस, और लेमन बायोएंजाइम तो बल्क में ही रहता है, और मिक्स फ्लावर्स का भी बायोएंजाइम बनाया है। ये हमारे पिल्स फैक्ट्री के प्रोडक्ट्स हैं जिस पे हम वर्क कर रहे हैं। जो फार्मिंग है, बायोएंजाइम को एग्रीकल्चर में किस तरह से हम यूज करते हैं अपने फार्म को इम्प्रूव करने के लिए। ये तो फार्म हो गया। अगर हम अपना छोटा सा भी गार्डन बना रहे हैं तो हम उसमें भी बायोएंजाइम को किस तरह से यूज करते हैं। अपने प्लांटर्स में हम वेजिटेबल ग्रो कर रहे हैं रूफटॉप पे, उस पे किस तरह से हम बायोएंजाइम को यूज कर सकते हैं अपने एनिमल्स पे, अपने पेट्स पे, और एक्वेटिक में फिश और जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं उन पर। हमारे कुछ एक्सपीरियंस हैं जो कि हमने इस बायोएंजाइम के साथ किए और हमें उसमें बहुत अच्छा रिजल्ट्स मिला। हमने इसको केमिकल्स के साथ भी यूज करके देखा और विदाउट केमिकल्स भी यूज किया। हमें उसमें बहुत अच्छे एक्सीलेंट रिजल्ट्स मिले। हमने इसको डेयरी में शेड क्लीनिंग, जो हमारे एनिमल्स हैं हमने उसकी शेड क्लीनिंग में यूज किया, और जो हमारे पॉन्ड है हमारे फार्म में हमने वहां पे भी बायोएंजाइम का यूज किया। पैट्स पे भी इसको यूज किया जिससे उसकी टिक्स कंट्रोल हो गई। तो कुछ एसेंशियल स्टेप्स हैं सस्टेनेबल फार्मिंग प्रैक्टिस फॉर हेल्दी क्रॉप। किसी भी हेल्दी क्रॉप के लिए क्या क्या पॉइंट्स होने चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप अपनी सॉइल को टेस्ट करें, जिससे उसका पीएच चेक होगा और उसी के अकॉर्डिंग हम अपनी सॉइल को इम्प्रूव कर सकते हैं। उसमें कितना हमें ऑर्गेनिक मैटर ऐड करना है, और किसी भी क्रॉप को ग्रो करने से पहले या वेजिटेबल ग्रो करने से पहले या फ्रूट्स और फ्लावर्स को ग्रो करने से पहले हमें क्या क्या लैंड को प्रिपेयर करना चाहिए, सॉइल को प्रिपेयर करना चाहिए, उसमें किस तरह को ऐड करना चाहिए, और
किस तरह के माइक्रोब्स यूज करने किस तरह ग्रोथ प्रमोटर्स और किस तरह से डिजीज कंट्रोल होती है। सो फर्स्ट हम अपनी सॉइल को टेस्ट करेंगे। तो कुछ चीजें होती हैं जो शॉर्ट टर्म पे आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं, जैसे एनपीके आप अपनी सॉइल को देंगे तो वो इम्प्रूव हो जाएगा, बट जो लॉन्ग टर्म होता है जैसे पीएच हो गया, ऑर्गेनिक कार्बन, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ये थोड़ा सा टाइम लेता है इम्प्रूव होने में। So what matter most in farming is the health and vitality of the soil. So most important factors होते हैं pH. So pH जो ideal pH होता है वो 6.5 से 7.5 तक होता है। और देन ऑर्गेनिक कार्बन होने से आपकी सॉइल की फर्टिलिटी एनहांस होती है, वाटर रिटेंशन कैपेसिटी अच्छी होती है, और आपके माइक्रोब्स और आपकी न्यूट्रिएंट साइकिल प्रॉपर चलेगी। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी आपकी प्लांट को फेवर करता है। अगर लो ईसी होगा तो आपकी प्लांट की ग्रोथ इंप्रूव होगी, और अगर हाई ईसी होगा तो आपकी जो यील्ड है उस पर बहुत इफेक्ट पड़ेगा। एंड देन माइक्रोब्स, जो आपका ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोज होगा और उसमें से न्यूट्रिएंट रिलीज होते हैं। नाइट्रोजन फिक्सेशन इंप्रूव करता है, डिजीज रेजिस्टेंस एंड सॉइल हेल्थ। सो बायोएंजाइम किस तरह से हमारी सॉइल हेल्थ को इम्प्रूव करता है? बायोएंजाइम ऑर्गेनिक मैटर को ब्रेक करके सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करता है, और जो न्यूट्रिएंट्स नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, उनको इजी वे में सॉइल मिलता है, जिससे कि सॉइल की फर्टिलिटी इंप्रूव हो जाती है। सॉइल का स्ट्रक्चर इंप्रूव होने से सॉइल में पोरोसिटी आएगी, एरिएशन बढ़ता है, और वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ेगी, और ऑक्सीजन का फ्लो जो होगा वो सॉइल में बेटर होगा। दूसरी, माइक्रोबियल एक्टिविटीज इंप्रूव हो जाएंगी, और उसकी न्यूट्रिएंट साइकिल इंप्रूव होती है, जिससे सॉइल की हेल्थ इंप्रूव हुई। और बायोएंजाइम जो होगा वो वाटर रिटेंशन कैपेसिटी भी उसकी इंप्रूव करता है, और अगर आपकी सॉइल पहले से ही बेटर होगी, हेल्दी प्लांट्स होंगे, तो वो पेस्ट को और डिजीज को काफी हद तक कंट्रोल कर सकता है। सो बायोएंजाइम ब्रेक डाउन ऑर्गेनिक मैटर को ब्रेक करके सिंपल न्यूट्रिएंट्स में कन्वर्ट करता है, जिससे सॉइल की पोरोसिटी इंप्रूव होती है, और एरिएशन होता है, और माइक्रोबियल एक्टिविटीज बढ़ती हैं। सो हमारे फार्म में हमने इन सब चीज़ों को अपनी क्रॉप्स पे ट्राई किया, और हमारी क्रॉप्स जो थी वो डिजीज रेजिस्टेंस हुई, और पेस्ट बहुत हद तक उसमें कंट्रोल हुआ। तो कुछ चीज़ों से हम अपना ऑर्गेनिक मैटर इंक्रीज कर सकते हैं, जिस तरह से ग्रीन मैन्युअर को हम ऐड करके, वर्मी कंपोस्ट को ऐड करके, और जो हमारे क्रॉप रेजिड्यूज होते हैं उनसे हम अपने ऑर्गेनिक मैटर को सॉइल इंप्रूव कर सकते हैं। तो ग्रीन मैन्युअर जो भी हम अपनी क्रॉप में ग्रो करते हैं, और उससे हम बायोमास इंक्रीज कर सकते हैं। बायो वर्मी कंपोस्ट की उसकी कैपेसिटी हम और अच्छी कर सकते हैं बायोएंजाइम की हेल्प से। अर्थवॉर्म की हेल्थ इंप्रूव हो सकती है, और सॉइल माइक्रोफ्लोरा इंक्रीज होता है, माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स इंप्रूव होते हैं, और जो वर्मी कंपोस्ट की क्वालिटी है वो बायोएंजाइम यूज करके और बेटर हो जाती है। तो किस तरह से हम अपनी वर्मी कंपोस्ट को बायोएंजाइम की हेल्प से इम्प्रूव कर सकते हैं? सो जो भी मस्टर्ड बायोएंजाइम है, बनाना बायोएंजाइम है, अगर हम उसको वर्मी बेड्स हैं, अगर आपके पास वर्मी बेड्स नहीं, आप स्मॉल उसमें अपना कंपोस्ट बना रहे हैं, उस पे भी अगर आप स्प्रे करें वीकली या 10 डेज में स्प्रे करें, तो आपकी जो वर्मी कंपोस्ट है उसकी क्वालिटी बहुत इम्प्रूव हो जाती है। सपोज जैसे आपके क्रॉप रेजिड्यू है, या आपके फार्म में, या आपने जो प्लांटर्स लगाए हैं, या जो आप वेजिटेबल्स ग्रो कर रहे हैं, उसके जो रेजिड्यूज बचे हैं उसको इकट्ठा करके अगर आप बायोएंजाइम का स्प्रे करें, तो वो भी एक बहुत अच्छा मैन्युअर रेडी हो जाता है। सो हम किस तरह से अपनी सॉइल को प्रिपेयर करें? कोई भी चीज हम ग्रो कर रहे हैं उससे पहले हम अपनी सॉइल को किस तरह से रेडी कर सकते हैं? तो जो सिट्रस बायोएंजाइम है,
हम इसको 1:200 की रेशियो में वाटर में डाइल्यूट करें। लार्ज है तो लार्ज क्वांटिटी होगा, स्मॉल है तो आप उसको स्मॉल तरीके से यूज कर सकते हैं। तो आप अपने लैंड को बेटर कर सकते हैं। तो लैंड को क्या क्या बेनिफिट्स होंगे, उसकी फर्टिलिटी इंप्रूव होगी, स्ट्रक्चर इंप्रूव होगा, और जो सॉइल है वो लूज होगी, पीएच बैलेंस होगा, और डिकम्पोजिशन बहुत फास्ट होगा, जो भी हमारे क्रॉप रेजिड्यूज हमारे लैंड में रहते हैं, और जो न्यूट्रिएंट्स फिक्स फॉर्म में पड़े रहते हैं वो उसको चिलेटेड फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, और माइक्रोबियल एक्टिविटीज इंप्रूव करता है, और जो क्रॉप है हमारी उसको नेचुरल फंजीसाइड की तरह उसको प्रोटेक्ट करता है। कोई भी सॉइल है अगर बैरन हो चुकी है तो उसको भी हम बायोएंजाइम की हेल्प से इंप्रूव कर सकते हैं। जनरली सॉइल बैरन क्यों होती है कि उसका पीएच इम्बैलेंस हो जाता है, एक्सेस हम उसमें पानी देना शुरू करते हैं, सॉइल का स्ट्रक्चर बहुत हार्ड और रॉकी हो जाता है, और वो सॉल्टी हो जाता है। मतलब केमिकल फर्टिलाइजर्स के एक्सेसिव यूज से भी जो सॉइल है वो बैरन होनी स्टार्ट हो जाती है। सो हम उसको किस तरह से इम्प्रूव करते हैं, सिट्रस बायोएंजाइम का स्प्रे करके एवरी 15 डेज पर हम इसको स्प्रे को यूज करेंगे तो हमारी जो सॉइल है वो इम्प्रूव हो जाएगी। अमोनिया को नाइट्रेट में कन्वर्ट करता है, फॉस्फोरस को फॉस्फेट में, जिससे आपकी सॉइल को आपके प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स मिलने स्टार्ट हो जाते हैं। आपका पीएच नॉर्मलाइज करता है, सॉइल को माइक्रोबियल एक्टिविटीज इंप्रूव करता है, और ऑर्गेनिक कार्बन इंक्रीज करता है। सो बायोएंजाइम की हेल्प से आप पीएच बैलेंस कर सकते हैं। बायोएंजाइम सॉइल का पीएच बैलेंस करता है, ऑर्गेनिक कार्बन इंप्रूव करता है, क्योंकि जो भी रेजिड्यू होता है वो उसको डिकम्पोज करता है। डिकम्पोज करने से उसके अंदर माइक्रोबियल एक्टिविटीज बढ़ती है, तो वो ऑर्गेनिक कार्बन इंक्रीज करता है। थर्ड, आप इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंप्रूव होती है। जो तुलसी बायोएंजाइम है वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को इंप्रूव करता है, और एंटी फंगल प्रॉपर्टीज होती है तुलसी में, तो तुलसी बायोएंजाइम को हम ईसी के लिए यूज कर सकते हैं। अब सीड जर्मिनेशन, जब हमने फार्म पे ही ट्राई किया था शुगर केन में, हमने सीड जर्मिनेट करने से पहले एनपीके बायोएंजाइम रेडी किया और उससे अपनी सीड को ट्रीट किया, शुगर केन की सीड को। तो जो प्रोसेस 10 to 15 डेज में होता है केमिकल मेथड से, बायोएंजाइम की हेल्प से वो जर्मिनेशन 4 to 5 डेज बाद स्टार्ट हो गया। और ये इसका बहुत बेटर वो रहा, जो हमारा शुगर केन ग्रो हुआ उसमें रेड रॉट डिजीज कंट्रोल हुई, और प्लांट ग्रोथ यूनिफॉर्म थी, नंबर ऑफ ट्रिलर्स इंक्रीज हुए, और जो पेस्ट का अटैक था वो प्रिवेंट हुआ। ये लेमन का बाग है, इसमें जो राइट साइड आप पिक्चर देख रहे हैं, तो अगर आप उसमें फ्लावरिंग से पहले सिट्रस बायोएंजाइम का स्प्रे करते हैं, सो उसकी फ्लावरिंग इंक्रीज हो जाती है एवरी 15 डेज पे, और जब 90% फ्लावरिंग हो जाती है तब आप स्वीट बायोएंजाइम स्प्रे करें, और देन पेस्ट कंट्रोल के लिए आप पेस्ट बायोएंजाइम का यूज करें। रेशियो 1:50 की रेशियो में। हम लोग की यूपी में जो विंटर्स में जो टेम्परेचर है वो बहुत 0 डिग्री तक हो जाता है, तो उसमें जो हमारी क्रॉप्स हैं उनके लिए बहुत ग्रो करना मुश्किल हो जाता है, कभी कभी तो उनको बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। तो उसमें जब बायोएंजाइम का हमने शुगर केन पे और पोटैटो पे स्प्रे किया, और 1.5 मंथ्स में इसको रिपीट किया 3 टाइम्स, तो उसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स थे। उसकी ग्रोथ अच्छी रही, और शुगर केन की जो ट्रिलिंग थी वो भी इम्प्रूव हुई। सॉइल बॉर्न डिजीज को भी बायोएंजाइम की हेल्प से कंट्रोल किया जा सकता है। जनरली सॉइल बॉर्न डिजीज किस किस वजह से होती है कि एक तो पीएच इनबैलेंस हो जाता है, मॉइस्चर और टेम्परेचर इनबैलेंस रहेगा, न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी हो जाती है सॉइल में, जैसे फंगल इन्फेक्शन और पैथोजेंस की वजह से सॉइल बॉर्न डिजीज हो जाती है। तो जैसे शुगर केन में आपने सुना होगा रेड रॉट हो गया, पोटैटो में स्क्रैब होता है, टोमेटो में विल्ट वगैरह होते हैं। उसको भी बायोएंजाइम कंट्रोल करता है। सिट्रस और नीम बायोएंजाइम के कॉम्बिनेशन को जब हम स्प्रे करेंगे 15 to 30 डेज के इंटरवल पे,
तो ये सॉइल बॉर्न डिजीज को कंट्रोल करता है, पीएच बैलेंस करेगा और न्यूट्रिएंट्स जो होगा उसको एनहांस करेगा, और जो स्ट्रेस मैनेजमेंट, टेम्परेचर फ्लक्चुएशंस है उसको भी कंट्रोल करता है। वायरल एंड बैक्टीरियल डिजीज को बायएंजाइम किस तरह से कंट्रोल करेगा, जैसे इंसेक्ट्स हो गए, एफिड्स, मिलीबग, होपर, इन सब का अटैक, वायरल बैक्टीरियल इन्फेक्शन और टेम्परेचर वेरिएशन से वायरल एंड बैक्टीरियल डिजीज ज्यादा बढ़ती है। नीम, टर्मरिक, गार्लिक और सिट्रस बायएंजाइम के कॉम्बिनेशन को 1:50 की रेशियो में स्प्रे करने से वायरल और बैक्टीरियल डिजीज कंट्रोल होती हैं, और पेस्ट और इंसेक्ट्स का अटैक कंट्रोल होगा, और 10 to 30% आपकी प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज होगी। सो एनिमल केयर में बायएंजाइम का यूज, जो एनिमल की शेड्स होती हैं, क्योंकि बायएंजाइम एक्टिव एंटीवायरल है, एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज है, सो इसको जर्म फ्री एनवायरनमेंट देता है एनिमल्स की शेड्स को क्लीन करने से। एनिमल्स में जो हाइजीन से रिलेटेड बीमारियां होती हैं तो वो बहुत हद तक कंट्रोल हो जाती हैं इसके स्प्रे करने से और एनिमल्स को क्लीन करने से। और एनिमल्स के फॉडर में, और जो हमारे पेट्स हैं, जो हम घर में पेट्स पालते हैं, उनकी पानी में, उनके फूड में अगर हम हल्का सा बायएंजाइम मिक्स करके दें तो उसका डाइजेस्टिव सिस्टम इम्प्रूव होता है और उसका इम्यून सिस्टम भी इम्प्रूव होता है। जो हाउस में पेट्स हम लोग पालते हैं उनमें टिक्स की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा रहती है, तो बायएंजाइम से अगर हम उनको क्लीन करें, नहलाएं, तो एवरी वीक जब भी आप उनको क्लीन कर रहे हैं तो बायएंजाइम से करें, तो उससे ये वाली प्रॉब्लम फिनिश हो जाएगी। तो ये बायएंजाइम के कुछ कोड्स हैं, जैसे अगर हमें एनपीके बायएंजाइम बनाना है तो पैराथेनियम ग्रास जो है वो गुड सोर्स है नाइट्रोजन का। मस्टर्ड हो गया, ये नाइट्रोजन के बहुत अच्छे सोर्स हैं। पोटेशियम बनाना से मिलता है और वुड एप्पल से मिलता है, और फास्फोरस जिमीकंद से, और कैबेज की लीव्स जो होती हैं। तो इन तीनों के कॉम्बिनेशन से हम अपना एनपीके बायएंजाइम बना सकते हैं। ग्रोथ प्रमोटर्स के लिए हम सोयाबीन का यूज कर सकते हैं, मोरिंगा और पलाश के फ्लावर्स और वेजिटेबल पील्स, जो रोज हमारे घर से वेजिटेबल्स निकलती हैं, उन सब के पील्स को इकट्ठा करके बायएंजाइम बनाने से पीजीआर बहुत अच्छा बनता है। इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स, चिली, गार्लिक और नीम, करेला, इन सब से, अनियन वगैरह, ये बेस्ट इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड्स की तरह यूज होते हैं। एंटीवायरल, एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल प्रॉपर्टी के लिए हो गया अदरक, हल्दी, लेमन और नीम। इम्पॉर्टेंट टिप्स में जो सिट्रस बेस्ड बायएंजाइम होता है वो फ्लावरिंग को इंक्रीज करने के लिए यूज किया जाता है। स्वीट बायएंजाइम फ्रूटिंग के लिए, फ्रूट की शेप, साइज और कलर के लिए यूज करते हैं। बिटर बायएंजाइम पेस्ट कंट्रोल के लिए यूज किया जाता है। सो केमिकल पेस्टिसाइड्स को इसके साथ मिक्स करके स्प्रे नहीं करना चाहिए। सॉइल बूस्टर की तरह अगर हम बायएंजाइम यूज करें तो 1:200 की रेशियो में हमें करना चाहिए, और सॉइल बूस्टर में सिट्रस और नीम बायएंजाइम का यूज करते हैं। ग्रोथ प्रमोटर की रेशियो 1:100 यूज करें, और इंसेक्टिसाइड में 1:50। एनिमल और पेट्स पे भी 1:50 की रेशियो में बायएंजाइम का यूज करना चाहिए, और वाटर ट्रीटमेंट में 1:1000 की रेशियो में, जो एक्टिवेटिंग प्लांट्स और फिशेस होते हैं उसमें। So with wrong farming method, we turn fertile land into desert. Unless we go back to organic farming and save the soil, there is no future. So we can leave behind the cleaner earth for the future generation by using baenzyme in our daily life. Thank you so much. Thank you so much, Taru ma'am, for such a learning and enlightening session. So as a good student, I'll just revise what all you said in fewer words so that we remember all the good things we learned today. So first of all, we understood about your APS farms, which has been recognized for innovations in sustainable agriculture.
which is a 20-acre farm, and you have a production of 1,000 liter of bioenzyme. And we also discussed about self-sustainable and regular income through the various ways that you have mentioned. Then you talked about like different variations of bioenzyme you make in Pills factory. And also you gave very gave us views about how even in a small garden we can make use of bioenzyme in by like in terms of aquatic and farmland. So how we can make use of bioenzyme. So we talked about that how it can help for animals, like for ticks, and then for cleaning their sheds. Uh, you talked about that how why the soil becomes barren. The soil becomes barren because of many reasons, like pH imbalance is there, or we give more water. So all those things can be controlled, or can be made better by bioenzyme, because it helps in perforation, and uh, so there can be disease control with the help of bioenzyme. So yeah, you gave much emphasis on testing the soil. That will help, while any kind of farmland or any kind of garden, even we need to understand what kind of land we are working on, so as to, if the diagnosis is done, then only the disease can be cured easily. Then we talked about yeah, so bioenzyme aids soil health, and there were three very good important points that you talked about: that soil structure, pest resistance, and water retention. Bioenzyme helps in all of them, and that is why it is the reason for the bettering the soil health. And we were happy to know that all the experiments that you did in your farms were quite successful and had been recognized many a times. So then we talked about we talked about that how we can improve the vermicompost also with bioenzyme. And then there was some emphasis on that you talked about soil sugarcane, your sugarcane and lemon orchard that you have been working on, and there have been tremendous growth in them because of the use of bioenzyme. So, and then there was some secret code that you have given about NPK, and that how we can make all these, like as you said earlier also, that based on the requirement we can make our own bioenzymes. So NPK is one of the secret code that we can make use of, like nitrogen, potassium, and one more which I forgot. So these were the ways that we can make use of even in a small garden. And there were various kinds of bioenzyme that you emphasis on, like Tulsi bioenzyme, for example. You said that it has antifungal properties and which can help in as a pesticide also. So thank you so much, Taru ma'am, for this session. And I think I tried to summarize, but there are many things, so I could not summarize everything. So we are open for questions. If somebody has any question from Taru ma'am, we are open to that. Hello, Parulji. Hello, Taru ma'am. This is Khayali here. Hello ma'am. Hello, Taru ma'am. Not a question, but it's just since I am also working in the same kind of aspects, it was so good to learn these aspects from you. And I would be obliged if you can share some more combinations of NPK. If you can through some through in my in the group or through here, so we can work on find a more source of nitrogen, potassium, phosphorus, and test on various kinds of combinations of the nutrient fertilizers. And of course the pesticides one too, you summarize this very well. I have also worked on them, like turmeric and ginger and this neem all. But NPK is really, I think it should be more work is required on that. So if I'd oblige if you can share some more combinations on them. Yeah. एनपीके में तो अभी हम इसी पे ही वर्क कर रहे हैं, बाकी और सर्च कर रहे हैं Okay. कि लैंड के लिए तो जितना चीप हो हमारे लिए उतना ही अच्छा है। तो जी अभी तो जी। सोर्सेस में यही है, बाकी फ्यूचर में होगा तो बिल्कुल शेयर करूंगी मैं। तो एक मैंने ढूंढा था, जो लेफ्ट ओवर कॉफी हस्क होता है, दैट इज वेरी गुड सोर्स ऑफ नाइट्रोजन. Okay. So you can also try that, and we can share the results. I got good results in terms of N, but it were not better than the vermicompost actually.
So we can explore some more things in this regard. Yeah, right. Okay, thank you so much. Thank you. Okay. Anyone else has any question for Taru ma'am? हेलो हेलो मेरी Yes. आवाज आ रही है आप लोगों को? Yes, sir. आपका सेशन बहुत अच्छा है और आपने कंपाइलेशन भी बहुत अच्छा किया है। मैं कॉम्प्लीमेंट दे रहा हूँ। Thank you. हाँ, क्योंकि ये हमारे लिए समझने के लिए तो है ही है, इंफॉर्मेशन के तो है ही है, एक दूसरे को कम्युनिकेट करने के लिए इम्प्रूवमेंट करने का भी एक बहुत अच्छा टूल है ये इस तरीके के सेशन। तो आप लोग जो एफर्ट्स कर रहे हैं और तरु तो बहुत अच्छा सारी चीजों को बैलेंस करती है, खुद अपने आप में एनपीके है वो पूरा। और आपने कहा तुलसी के लिए वो इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी के भी लिए भी होता है, यूज करता है, वो छूट गया आपसे, तो उसको थोड़ा सा आप रिकवर कर लें तो अच्छा रहेगा, ताकि वो जो इंग्लिश के हिसाब से जो लोग उसको करते हैं तो वो दोनों के हिसाब से प्रॉपर हो जाएगा, बाई लैंग्वेज हो जाएगा अपना पूरा सेमिनार एक तरह से। ये बहुत अच्छा एफर्ट्स है, क्योंकि कंपाइलेशन करने वाला इंग्लिश में बोल रहा है और जो बाकी जो मेन स्पीकर है वो हिंदी में बोल रहा है, तो दोनों लैंग्वेज को समझने वाले जो लोग हैं उनको बेनिफिट होगा। ये भी एक हमारे सेशन की ब्यूटी है एक तरीके से, कि बाय लैंग्वेज में हम उसको एक्सप्रेस कर रहे हैं, फील कर रहे हैं और उसको अडॉप्ट कर रहे हैं और एक दूसरे को कम्युनिकेट कर रहे हैं। जैसे ख्याली ने कॉफी हस के बारे में कहा, तो ये एक रिसर्च का एक चैप्टर खुला है सबके लिए, तो वो एक इंफॉर्मेशन भी है हम लोगों के लिए और आर&डी का एक पार्ट भी है। तो मैं बहुत तरु को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करती है, बहुत अच्छे से। और तरु का फीडबैक जो पूरे इंडिया में अलग अलग तरीके से, जब एग्रीकल्चर की बात होती है और बायोएंजाइम की बात होती है, तो तरु को सुनना पसंद करते हैं। तो तरु का एक अच्छा स्पीकर हमको, तरु को एक एंजाइम के फॉर्मेट में मिला है, तो बहुत अच्छा है। मैं उसको बधाई भी देता हूँ और मैं ये भी कहता Thank हूँ you, कि sir. वो अगली बार से जो एनिमल के मामले में थोड़ा सा हमको डिटेल काम करना है, ताकि वो एग्रीकल्चर का एक सपोर्टिव सिस्टम आ जाएगा, क्योंकि उसमें जी, अभी हाल बहुत सारे डिसीज को लेके एक बायोफिकेट करके हम लोग को समझना चाहिए उसमें। तो वो भी एक हमारा चैलेंज भी है और हमारे लिए एक सॉल्यूशन भी है। तो उसको हम लोग कैसे कैसे फॉर्मेट में, जैसे एनपीके की बात की है उन्होंने, तो जिस तरीके के डिसीज को स्पेसिफिक लेके बात करेंगे और कॉम्बिनेशन को लेके बात करेंगे तो हमारे लिए वो अच्छा होगा। जैसे बनाना की बातचीत होती है, तो जो पोटेशियम है वो जब बैठा रहता है, लग जाती है उसको, और उसको एनिमल को जब आपको क्योर करना रहता है, मतलब खास करके जैसे कॉस्मेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, तो वो हम उसमें ले सकते हैं। और उसके अलग अलग जगह पर बातचीत करके भी इसको हम लोग को सॉल्व करना है। और अभी नियर फ्यूचर में हम लोग अपनी एक टेक्निकल टीम बना देंगे ऐसी, जो साल भर इन सब चीज़ों को लेके बातचीत करती रहेगी और वो इस तरीके के कम्युनिकेट करेगी। तो हमारे स्पीकर्स और उनको फीडबैक देने के लिए टीम और सारे लैब वगैरह का अरेंजमेंट भी करते हैं, तो उसको भी आगे लेके जाएंगे सबका। मैं जितने भी जुड़े हैं हुए लोग हैं उनको फिर से ये कहता हूँ कि वो इसको और कॉन्ट्रीब्यूटिव सिस्टम के ऊपर बात करें अपनी, ताकि हम लोग इस सेशन को और अपने जो एंजाइम को आगे तक ले जा पाए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू पारुल, बहुत अच्छा किया आपने। यू हैव डन एक्सीलेंट जॉब ऑन दैट पार्ट, एंड एज अ not only moderator, your translate part is more better. Thank you, sir. Okay, all the best, keep it up. So do we have any more questions? Because we have we have some time with us. तरुण जी, मशरूम कल्टीवेशन के बारे में बताइए उनको, रूम को और कल्टीवेशन में, और जो इश्यूज आता है शेल्फ लाइफ का, और मशरूम रिलेटेड कुछ बताइए। आप काम कर रही हैं मशरूम पे। सतीश जी, मैं अभी कंपोस्टिंग पे और जो हाइजीन, जो फंगल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, अभी इस पर ही है। अभी उसका मतलब ग्रो करने के बाद उसको किस तरह से बायोएंजाइम के साथ, अभी इस पे वर्क नहीं हो पा रहा है। अभी ओके, कंपोस्टिंग और इस पर ही थोड़ा सा काम कर रहे हैं। चलिए, तो आई विल बी कंपोस्टिंग वेटिंग। में जी, जरूर जरूर जरूर, थैंक यू।
can I तरू जी say को एक something? रिक्वेस्ट करेंगे अपन, तरू जी को एक रिक्वेस्ट करेंगे, उनके जो फादर हैं वो उनका बहुत अथॉरिटी है, तो उनको भी अपने सेशन में कभी इनवाइट करें अगर तरू हमको अलाउ करे तो। हेलो। अपने फादर से बात कर लूंगी नागेश जी, हाँ, उसके क्योंकि बाद हाँ, जैसा मैं चाहता हूँ कि उनका भी एक आशीर्वाद भी मिले हम लोगों को, एंजाइम फैमिली को। और दूसरी चीज क्या है कि वो उनका जो कहना चाहिए कि जो कंट्रीब्यूशन है सोसाइटी को वो बहुत अच्छा है। मैंने उनकी काफी तारीफ सुनी है। तो आप उनको एक बार हम सबकी तरफ से रिक्वेस्ट करें कि वो आए। और वैसे ही बड़े हैं सबसे, तो उनकी ब्लेसिंग भी हम लोगों को चाहिए रहती है, ताकि हम लोग बहुत सारी चीज को इम्प्रूव करने का मौका मिलेगा उससे हमको। तो आप उनसे बात जी बिल्कुल। करके बताइएगा, हाँ तो जी, अच्छा लगेगा सबको। जी बिल्कुल। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप। थैंक यू नागेश जी। Preeti ma'am wants to ask something. Thank you, Parul. Nothing Yeah. to ask. I just wanted to talk few things. Yeah. Now, just wanted to speak about the progress and new members. There are some new members joined. We need to, people who join us in the month, like January, who have joined, they should also come for these kind of program, because it is a kind of, they also get used to, it's a new space for them. They also need to understand what are we talking, how are we talking, how are they learning, unless they understand that, they will not be satisfied. So we need to encourage people in our group to join, because most of them are lost and they don't attend the sessions. So we do have challenges in that. Now we have completed BEAT beautifully. It was the first BEAT bioenzyme transformation in January. And this is going to be the ongoing sessions, ongoing program every year in January. And we also, under the program, we had the talk series, where we invited the people. Our guests were from outside. And I see only those, few known heads, they join the program, because if they want to be an entrepreneur, they need to understand the enzyme, the effect, the impact. And the journey starts with that, because this is about exploring the opportunities, exploring what we can learn, and how bioenzyme can help us restore whatever we have lost. Now, so सिर्फ लोगो देने से काम नहीं हो जाता है कि आई हैव गिवन माय लोगो फॉर बीट प्रोग्राम. नो, you need to attend sessions, you need to learn, because I think every session, whenever we have whoever takes the session, there is always a learning there. And I've been learning every session what whoever talks. And so we need to encourage people to do that. We shouldn't stop learning, whatever way, whichever way. Every buddy who handles the program, they need to. We do learn. हम सबसे सीखते हैं, और हमें सबको encourage भी करना है, because we need to grow this community. We need to grow the spread of bioenzyme. Today, I went to this college, BMS College of Engineering in Bangalore, and I know we haven't done much. We have done a lot of work in last 15 years, but still, I feel we have worked. Our work is spread wider than a specific area wise. And after talking to these children, I felt we need to work a lot even in our city. So, a lot of work is there, and until unless we empower each other, the spread of bioenzyme will not go. We need to spread it. We need to give every home, Har Ghar bioenzyme. It has to go. It has to go to every home. And for that, we need to come and attend the session, because these are the learning session. Everybody is busy, I understand. But, from that busy schedule, and the entrepreneurship is all about going or taking one step out of the comfort zone and exploring it.
it just doesn't come to everybody. And the more and more we explore, more and more we learn about the enzymes. It has taken years of effort to come to the level what we have today. Uh, Dr. Roshokon has given her 50 years to understand what, and that's how she teaches us. And now we need to take it further from here. Now, and that will come only when we start learning and start exploring, the kind of work these interns they have done. Our members like Yogini, Taru, they've all mentored those children so well that, we didn't have to go back and check on them, have you done it properly? Have you, they took this as a responsibility and they have done it. Our modules for the farmers training, 1 day, 10 days, and 21 days of farmer training module is ready. The booklet is ready, and it's all the effort of Taru and those few kids who did this program, who made this booklet. And that booklet will shortly get inaugurated by our Minister of Agriculture in Delhi. They have actually put so much of effort and it has come out so beautiful. And believe me, since we are connected with this international enzyme network, this kind of collective and the information, the proper information about bioenzyme in a proper segregated way, it has not been done. The documentation, it has come out so beautiful. This is and it's the first time. I mean, I feel very proud to say it is first time in the world we have done something like this. Such a beautiful book is going to come out. So now the agriculture sector, we are done with certain module, 1 day, 10 days, and 21 days. Now, who will do this? We have to take the village around us where we can go regularly, where okay, this village is close to my house, where I live, I can just go to the village once in a month for the 1 day program. So let's start with that 1 day program. So 1 day program is all about soil, what Taru was talking today about vermiculture, about using the enzyme in vermiculture, how these enzymes can, restore our the soil and the ecology inside the soil. So here again, we each, one or two, Taru cannot go everywhere. So we need to have hands-on. We need to understand now, since this has happened, we will have another session where we talk only about that 1 day training module. So when we transfer this knowledge to our members, it will spread to the villages. And all these will be under Government of India. So this is definitely a very prestigious work. And like the way we have done it for agriculture, we will also develop modules for different sectors. So, and it is not the one person's job. We need a team for it. And the team will come only when they understand, when they come to the understanding and that of the same level what we are talking. And this will happen only when they come and attend and, talk to each other. So this is what we need to do. So it's only agriculture which is ready, and these programs we are looking forward to integrate in our, universities, the agriculture universities. How do we bring it as a course in that, whatever level course, it doesn't matter, but integrate in the current agricultural course what is happening in India. So, all these things will come only when we come together, only when we attend, sending the logo and saying, okay, we are done with it, beat is over. No, the beat has to continue and we have to keep beating our own head and yeah, trumpet, I can say, and we have to keep doing it. And it is only us, we have to do it. Nobody else will do. So I would like all of you, whoever is there, encourage people to join, attend the session. And I mean, those 3 days was 4th, 5th, and 6th was such a fantastic program we had. It was so beautiful program, and it happened beautifully because all of us were together.
We are also having within, I can say just within few days, I will have a meeting, and we are planning to organize Sustainability Fest, and this will happen in April around Earth Day in Himachal. So keep your bags ready. You'll be taken care from Chandigarh onwards. So, what we do in Fest, how we do it, it's going to be just 1 day festival. I don't want to continue festival and all of us get tired in 2-3 days. It's just going to be 1 day from morning 8 to evening 8. So 12 hours, we will have a lot of discussions. We will have the stalls there. We will have paper presentation, and we will also have cultural. So I know we have a lot of good artists among us. So we will have a lot of evening. We will have some cultural program. So this is the overview of the program. We haven't decided yet completely, but all this thing will come, and at least the date we will announce within a week. So when it's going to be, so that we are all ready with our thing, and we can sell our products there. We can put the stalls there. We can, I mean, that's all I can say right now because nothing is organized yet. So when we have, and we schedule it, we'll get back to you on that. So this is what from my side, and thank you for joining. And Thank you so much, Preeti ma'am. We got a lot of, first of all, enthusiasm, like the way you say, the enthusiasm is infectious from you. So your energy is in your words. So we also, and yes, as you said that we all have to be enthusiastic ever to join these sessions, because we cannot skip these learning sessions, and if we are not, then I think we are missing something very, very enlightening. So that is true. If we can have one or two more questions if somebody wish to ask Taru ma'am. After that, we can take the pledge. क्वेश्चन तो कोई नहीं है, लेकिन तरु जी बहुत अच्छा हमेशा की तरह सेशन आपका रहा, बहुत इंफॉर्मेटिव, वेरी नाइस, मजा आता है हमेशा। और प्रीति जी ने भी अभी बहुत ही अच्छा इंफॉर्मेशन दिया। यही लगता है कि पार्टिसिपेंट्स अगर ज्यादा होते तो ज्यादा इसका फायदा होता। माने वी डू ऑल दीज सेशंस फॉर आवर मेंबर्स, एंड इफ द मेंबर्स आर नॉट गोइंग टू मेक यूज ऑफ इट, and then it becomes a problem. So यही है, सभी को एक रिक्वेस्ट है कि ज्यादा से ज्यादा our members, our wiki members, our BA members, दो ग्रुप्स है हमारे। So this is an opportunity to gain some knowledge, तो आपको सबको join करना चाहिए। Hopefully we have more people joining in for the next session. Thank you so much, Taru ji और पारुल जी, आप भी बढ़िया moderation कर रहे हो, तो congratulations to both of you. एक बार Zoom में सभी लोग आ जावें ताकि ग्रुप फोटो हो सके। हाँ जी। पता ही नहीं, आपकी तो आवाज नहीं आ रही। तरु जी, आपका फार्म देखने का मतलब आपकी ये सब वीडियो देख के ना
फार्म विजिट करना चाहिए। बस अब बिल्कुल मैं आप सोच आइए। रही हूँ। हाँ, मैं ना आपका जरूर फार्म देखने आऊंगी कि एटलीस्ट ये बोले कि हम बायो एंजाइम से वाले फार्म कैसे होते हैं, हाँ नहीं क्या बिल्कुल आइएगा। डिफरेंस है ये। आप सभी आइए फार्म देखने। मोस्ट हाँ, वेलकम। ये मतलब मुझे लगता है कि वो जैसे बच्चों को ट्रिप पे नहीं लेके जाते, एक ऐसे ट्रिप हमारे एकेडमी के होने चाहिए कि आपका फार्म दिखाने वाला। बिल्कुल। हम सस्टेनेबिलिटी फेस्ट वहीं पे रख लेते हैं। वो नेक्स्ट ईयर रखेंगे। हाँ सर, इस नेक्स्ट ईयर वहीं रखेंगे। इस साल हम लोग थोड़ा ज्यादा सोच रहे हैं धमाका करने का, और आप साथ में मेरे को आना है। और कॉफी का बायो एंजाइम मैं आपको भेजता हूँ तरु जी। जी आई हैव अ 2 years old कॉफी बायो एंजाइम, तो वो ठीक मैं है। आपको नोएडा के एड्रेस पे भेजूंगा। मैं नोएडा या हाँ मेरठ, जी क्योंकि जी जी संबल कोरियर नहीं जाएगा। आई सेंड, जी नो इश्यूज। थैंक यू। ठीक है, थैंक यू। चलिए ग्रुप फोटो लीजिए भाई, कौन ले रहा है? कौन ले रहा है? सतीश हो जी गई हो अभी गया। सतीश जी, इतनी देर से तो हम चुपचाप बैठे फोटो हुए आप थे। लोग तो स्माइल कर वाह। रहे थे, हमको लगा फोटो कौन ले रहा था? अरे मैं मैं अपने स्क्रीनशॉट लूंगा, उसमें 7 लोग आ रहे हैं। मतलब पारुल जी हैं, तरु सिंह जी है, स्वाति है, प्रीति राव जी गायब है। सोचो आप। पारुल, मतलब जिसको भी आती है या तो लैपटॉप से ले लो। नहीं नहीं, लैपटॉप से ही सभी लोग आ पाएंगे, क्योंकि आप एक नीलिमा जी हैं मेरे जैसे साथ, अस्मिता है, तेजस जी हैं। बस 6 ही कहाँ लोग से आ रहे हैं मेरी स्क्रीन पे। पता नहीं, स्क्रीनशॉट आता है। अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। स्क्रीनशॉट भी तो लेना अपना एक्टिविटी में है ना। और ये स्क्रीनशॉट नहीं है, ये बायो एंजाइम शॉट है। विंडो शिफ्ट एंड एस। अनम्यूट। मेरे में तो शिफ्ट ही नहीं दिख रहा, विंडो है, कंट्रोल है, ऑल्ट है और FN है। एक अरे अप एरो है। विंडो एंड प्रिंट स्क्रीन आई हैव डन, तो हुआ है शायद। तो बच्चों को बुलाना था, अपने इंटर्न्स वालों को, वो अभी सब तक करके छुट्टी भी दे देते हैं हम लोगों को। भेज दिया जी। हो गया, अच्छा। योगिनी मैम ने थैंक यू। तो अभी we can conclude the session and start the pledge. यस। I'll just share the pledge. And share नहीं हुआ। हुआ शेयर हुआ, हो गया। Okay. So everyone can be on mute, and I will just speak the pledge, and you can speak while be on mute. Okay. So I pledge to embrace and promote the use of bioenzymes to protect our soil, air, and water. I commit to making and using bioenzyme for organic waste management, reducing chemical pollutants, and fostering sustainable ecosystems. Together, we will safeguard our environment and create a cleaner, healthier world for all. Thank you so much.